موسیٰ علیہ السلام کا کئی بار ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے عظیم رسول تھے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کر سکتے تھے، اسی وجہ سے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت لمبے چوڑے تھے اور بے انتہا طاقتور تھے۔ ان میں 10 آدمیوں جتنی طاقت تھی۔ ان کا رنگ سانولا تھا اور کبھی کبھی بولتے ہوئے وہ اٹک جاتے تھے، یعنی سٹٹر کرتے تھے، لیکن یہ ان کی کمزوری نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ جاننا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ایک اچھا آدمی تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے جو بھی ایجپٹ کا بادشاہ بنتا ہے فرعون کہلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام پر اتنا اعتبار کرتا تھا کہ اس نے مصر کی سلطنت کا خزانہ یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی حکمت اور خواب کی تعبیر سے مصر کو قحط سے بچایا۔ بارش اور ہریالی کے 7 سال یوسف علیہ السلام نے گیہوں کو ایک خاص ٹیکنیک سے پرزرو کروایا تھا، جس کی وجہ سے آنے والے اگلے قحط کے 7 سال جب سوکھا پڑا تب ایجپٹ میں کوئی بھی بھوکا نہیں مرا۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا، اور فرعون نے یوسف علیہ السلام کے ماں باپ، بھائی بہن اور قبیلے کے سارے لوگ ایجپٹ بلا لیے تھے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد مائیگریٹ کر کے ایجپٹ آ گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے شاہی زندگی گزاری۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی موت کے بعد اس فرعون کی بھی موت ہو گئی، اور جب دوسرا فرعون بادشاہ بنا تو اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی موت کے بعد ایک اور فرعون آیا جو کہ اب تک کا سب سے بدتر فرعون تھا۔ دنیا کی ہسٹری میں فرعون جیسا بدترین بادشاہ نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آ پائے گا۔ فرعون اپنے آپ میں ایک بدترین مثال تھا۔ اس نے اعلان کر دیا تھا، بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے لیبر ورک کرواتا تھا اور انہیں نچلے طبقے کی قوم بنا دیا تھا۔ مصر کے اصلی لوگ جو کہ قبطی کہلاتے تھے ایلیٹ کلاس بن گئے تھے، اور وہ بھی بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے۔ جب چاہے تب بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ زبردستی کرتے تھے اور آدمیوں کو مار پیٹ دیتے تھے۔ یہ فرعون ظلم کی آخری حد تک پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ غرور میں آ کے اس نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا اور مصر کے سارے لوگوں پر لازمی کر دیا تھا کہ وہ بھی اسے خدا مانے۔ خدا تو صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ، اور جب بھی کسی ظالم بادشاہ نے اپنی ظلم اور کفر کی حدوں کو پار کیا ہے، اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے فرعون کی بربادی کا قصہ۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی اور مصر کے سارے لوگوں کو جلا دیا۔ سب تباہ ہو گیا، لیکن بنی اسرائیل کے کسی گھر کو آگ نہیں لگی اور وہ سب آگ سے محفوظ رہ گئے۔ فرعون یہ خواب دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے اس خواب کی تعبیر کے لیے کاہنوں کو بلایا۔ خواب کی تعبیر کرنے والے ان ایکسپرٹس نے اس کا یہ مطلب نکالا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مصر کے لیے تباہی بنے گا۔ یہ سن کر فرعون ڈر گیا اور اس نے ایک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی بنی اسرائیل کی پوری نسل ختم کرنے کا پلان۔ مصر میں ہر دائی یعنی ڈیلیوری کرنے والی عورت کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی عورت پریگننٹ ہو تو اس کی اطلاع فرعون کی فوج کو دی جائے، اور اگر وہ دائی ایسا نہ کرے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی ہر پریگننٹ عورت پر نگرانی رکھی جانے لگی، اور جیسے ہی کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوتا فرعون کی فوج اسی وقت اس لڑکے کو قتل کر دیتی تھی۔ ہزاروں بچے بے رحمی سے قتل کیے جانے لگے۔ لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ہارون علیہ السلام پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے اور ان کی ایک بہن بھی تھی، پر ان کی ماں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پریگننٹ تھی۔ انہوں
उन्होंने इस मुश्किल दौर में अपनी प्रेगनेंसी को छुपाए रखा और दाई यानी डिलीवरी करने वाली औरतों से भी खुद को छुपाए रखा, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई और उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया। उन्होंने घर पे ही बच्चे को पैदा किया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। बच्चे की पैदाइश के बाद वो फिक्रमंद रहने लगी। प्रेगनेंसी तो उन्होंने छुपा ली थी, पर अब बच्चे को कैसे छुपाएं? बच्चा रोता है तो आवाज आसपास सुनाई दे ही जाती है। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही। फिर अल्लाह ने उन पे वही की, यानी उनके दिल में अपना पैगाम पहुंचा दिया। इसका जिक्र कुरान में आता है। और हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे, और जब तुझे इस बच्चे के लिए कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना, और कोई डर, खौफ या रंजो गम ना करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे पैगंबरों में से बनाने वाले हैं। फिर जब फिरौन की फौज इंस्पेक्शन के लिए बनी इसराइल की बस्ती आई और सख्ती से नए पैदा हुए लड़कों को तलाश करने लगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ उन्हें छुपाकर दरियाए नील के पास ले गईं और एक बास्केट में उन्हें रखकर बहा दिया। ऐसा करते वक्त एक माँ के दिल की क्या कैफियत होगी। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का सीना फट रहा था और वो नम हो चुकी थी। क्या ज्यादा बदतर है, अपने बच्चे को अपनी आँखों के सामने कत्ल होते देखना या अपने ही हाथों से अपने न्यू बॉर्न बेबी को दरिया में बहा देना? बेशक ये उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को दिलासा दिया और वादा किया कि वो इस बच्चे को उनके पास वापस पहुँचा देगा। जिंदगी के ऐसे मुश्किल लम्हात में ही अल्लाह पर यकीन रखना ईमान का असल टेस्ट होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह का हुक्म माना और अपने बच्चे को बास्केट में बहाते टाइम दिमाग से काम लिया और अपनी बेटी से बोला कि मेरे बच्चे के पीछे पीछे चलती रहो। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने दरिया के किनारे से उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। बास्केट तैरते तैरते फिरौन के महल तक जा पहुंची। वहाँ फिरौन की बीवी आसिया मौजूद थी। सैयदा आसिया एक बहुत नेक औरत थी और एक खुदा पर यकीन रखती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि फिरौन ने उनसे जबरदस्ती निकाह किया था, वरना उनके घर वालों को मार डालने की धमकी दी थी। आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मजबूरी में फिरौन से शादी करी थी, पर कभी भी उससे मोहब्बत नहीं की, ना ही उसे खुदा माना, और उन दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी। आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा अक्सर गमज़दा रहती थी और महल से बाहर आकर दरियाए नील के किनारे बैठ जाती थी। उस दिन जब आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा महल के बाहर दरिया के किनारे आकर बैठी थी, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी कनीजों से उस बास्केट को पास बुलवाया तो देखा कि उसमें एक नूरानी बच्चा है। आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने देखकर फौरन पहचान लिया कि ये बच्चा बनी इसराइल में से है। बे औलाद होने की वजह से अल्लाह ने उनके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी और उन्होंने उस बच्चे को अपने पास उठा लिया। फिर वो उसे फिरौन के पास लेकर गईं और उसे ये बच्चा दिखाकर कहने लगी कि ये मेरी और आपकी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। बहुत मुमकिन है ये हमें कोई फायदा पहुंचाए, या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। लेकिन फिरौन ने वो बच्चा रखने की इजाजत अपनी बीवी को दे दी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बहुत फिक्रमंद और बेचैन थी। करीब था कि वो इस राज को जाहिर कर देती, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को इत्मीनान पहुँचाया। और देखिए अल्लाह कैसे अपने वादे पूरे करता है। बच्चा जब महल में पहुँचा तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। उसके पास दूध पिलाने वालियाँ लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध ना पिया। अल्लाह ने बाकी सबका दूध उन पर हराम कर दिया था। जो औरत भी मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की कोशिश करती, नाकाम हो जाती। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़े ये सब देख रही थी। कहने लगी, मैं आपको एक ऐसा घराना बता सकती हूँ जो इस बच्चे की परवरिश करे और मोहब्बत से इसे दूध पिलाए। उससे पूछा गया कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो लोग इसके खैरख्वाह होंगे? उस समझदार बच्ची ने बोला, ये इसलिए कि वो लोग गरीब हैं और जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में एक नेक औरत है
जो इस बच्चे को खुशी खुशी दूध पिलाना पसंद करेंगी। मजबूरन महल के लोग मान गए। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की फौज के साथ घर वापस ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और दूध पिलाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। महल की कनीजों ने ये बात आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को बताई तो सैयदा आसिया ने उनकी माँ को पैगाम भिजवाया कि वो महल आ जाएं ताकि बच्चा उनसे दूध भी पीता रहे और महल में भी रहे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरे शौहर और बच्चे हैं, मैं इन्हें छोड़कर महल में रहने के लिए नहीं आ सकती। अब क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी और का दूध कबूल नहीं किया था, इसलिए महल के लोग रोज खुद मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास दूध पिलवाने के लिए लाते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का बेहद एहतराम होने लगा। फिरौन के महल से उनके लिए तोहफे आते थे। ये है अल्लाह की शान। अल्लाह ने वादे के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास वापस पहुँचा दिया और उन्हें कत्ल होने से भी महफूज रखा। सोचने की बात यह है कि जिस फिरौन ने हर लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, उसी के महल में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज कर दिया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पलने लगे, यहाँ तक के 18 साल के खूबरू जवान हो गए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें इल्म व हिकमत अता फरमाई। नेकी करने वालों का हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। यानी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें सही और गलत की हिकमत अता करी। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही बनी इसराइल पर जुल्म होते हुए देखते थे, लेकिन जवान होने के बाद अपनी आँखों के सामने जुल्म होते हुए देखना अब उनकी बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। वक्त गुजरता रहा और मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में बनी इसराइल पर जुल्म होते देखते रहे। एक दिन दोपहर के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे। गर्मी का वक्त था तो ज्यादा लोग उस वक्त बाहर नहीं थे। उन्होंने देखा कि फिरौन की फौज का एक आदमी बनी इसराइल के एक कमजोर आदमी को बेरहमी से मार रहा है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उस मिस्री को रोकने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह पर मुक्का मारा। उनका मकसद उसको रोकना था, पर क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर थे, वो मिस्री एक ही मुक्के में गिरकर मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो गया। उनका कत्ल करने का तो कोई इरादा नहीं था। उन्होंने फौरन कहा, ये तो शैतानी काम है, यानी शैतान ने उन्हें गुस्से से बेकाबू कर दिया और उनसे ये गुनाह करवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह से तौबा की, या अल्लाह, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तो मुझे मुआफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम से ये गुनाह बिना किसी इरादे से हुआ था, ये खता थी, इसलिए अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। बेशक अल्लाह माफ करने वाला बहुत मेहरबान है। अगले दिन उन्होंने फिर से उस बनी इसराइली आदमी को किसी और के साथ लड़ते हुए देखा तो वो समझ गए कि असल में ये ही झगड़ालू आदमी है। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह से वादा किया कि अब वो किसी गुनहगार की मदद नहीं करेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़ाई को रोकने गए और उस आदमी से कहा कि असल में तुम ही लड़ाकू आदमी हो। उस आदमी ने जोर से बोला, मूसा, कल जिस तरह तुमने एक शख्स का कत्ल किया था, मुझे भी मार डालना चाहते हो? उस इंसान ने इस बात का जरा भी लिहाज नहीं किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कल उसकी जान बचाई थी। फसादी लोग कुछ इसी तरह के होते हैं। उसकी इस बात से मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि कल वाली खबर शहर भर में फैल चुकी है। फिर शहर के कोने से एक मिस्री आदमी दौड़ता हुआ आया और मूसा अलैहिस्सलाम से बोला, मूसा, यहाँ के सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं। यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें गिरफ्तार कर ले। यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए क्योंकि फिरौन तो पहले ही उनसे मोहब्बत नहीं करता था। उसने तो सैयदा आसिया के कहने पर मूसा अलैहिस्सलाम को महल में रखा हुआ था। इसके अलावा फिरौन की कौम के दूसरे सरदार भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम से चिढ़ते थे और दिल में बुग़्ज़ रखते थे। अब तो उनके पास मौका आ गया था कि किसी बहाने से मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दें। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा होकर मिस्र के शहर से निकल गए। मिस्री उन्हें तलाश कर रहे थे और फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए अपने जासूस लगा दिए थे। इस डर की सिचुएशन में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार,
मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ निकल गए। उनके पास न खाना था, न पानी था और न ही सवारी का कोई जानवर था। वो बस पैदल जंगल में चलते जा रहे थे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। असल में मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट से फिलिस्तीन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनके जूते भी टूट गए, पर वो नंगे पैर चलते रहे। जब उन्हें भूख लगती तो वो पेड़ों के पत्ते तोड़कर खा लेते। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए। मदियन अल्लाह के नबी शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। उस वक्त शोएब अलैहिस्सलाम काफी बूढ़े हो चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते मदियन के पानी के पास पहुंच गए। बस्ती के बाहर उन लोगों ने पानी की जगह बना रखी थी। वहीं के कुएं से वो लोग अपने लिए पानी लेते थे और अपने जानवरों को भी पानी पिलाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ लोग आ जा रहे हैं। किसी के पास ऊंट हैं तो किसी के पास बकरियां। कुएं के पास उन लोगों ने हौज बना रखे हैं। वो कुएं से पानी निकालकर उन हौज में पानी डाल देते हैं। जानवरों के लिए अलग हौज है और इंसानों के लिए अलग हौज है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ 2 औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थी। वो अपनी बकरियों को लिए दूर खड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम को ये देखकर हैरानी हुई कि सब लोग तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ये दोनों पीछे खड़ी हैं। ये क्या मामला है? फिर मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही? वो बोली, हम आदमियों की इस भीड़ में दाखिल नहीं होना चाहते। जब तक ये चरवाहा वापस ना लौट जाएं, हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाते। और हमारे बाप बहुत बुरे हैं, तो वो भी हमारी मदद के लिए नहीं आ सकते। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताकत से उन चरवाहों को पीछे हटाया और पानी निकाल के उन औरतों की बकरियों को पिलाया और घर ले जाने के लिए भी उन्हें पानी दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और उन्होंने अल्लाह से दुआ करी, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ए अल्लाह, तू जो कोई भलाई मेरी तरफ भेजना चाहे मैं उसका मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम नंगे पैर मदियन पहुँचे थे। उनके पैर जख्मी थे और उन्हें शदीद भूख लग रही थी। उस वक्त वो बहुत जरूरतमंद थे, लेकिन वो किसी से भी मदद नहीं मांगना चाहते थे। उन दोनों में से किसी एक औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ सुन ली। वो वापस बस्ती में अपने बाप शोएब अलैहिस्सलाम के पास आईं और उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद करी। ये भी बताया कि इस वक्त वो जरूरतमंद हैं मगर बहुत खुददार हैं। शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलवाया। उनकी एक बेटी मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्म व हया से आई और फरमाया, हमारे बाप आपको बुला रहे हैं। आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया, इसलिए वो उसका उजर देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम खुददार तो थे, लेकिन उस वक्त बहुत जरूरतमंद थे, इसलिए वो मौके की नजाकत को देखकर साथ चल पड़े। उन्होंने महसूस किया कि वो लड़की शर्म के मारे छुप रही है, तो वो उससे आगे चलने लगे। कहीं मुड़ना होता तो वो लड़की उस डायरेक्शन में एक कंकड़ फेंक देती। मूसा अलैहिस्सलाम उस तरफ मुड़ जाते। इस तरह वो उनके घर पहुँचे और उनकी मुलाकात शोएब अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने शोएब अलैहिस्सलाम को अपने बारे में बताया और जो वाकयात उनके साथ पेश आए थे वो भी बताए। शोएब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, आप मत डरिए, आपने जालिम कौम से निजात पा ली है। उनकी एक बेटी ने कहा, अब्बाजान, आप इन्हें काम पर रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ईमानदार और मजबूत है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नेक थे, शोएब अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर करी कि वो अपनी एक बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दें, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। लिहाजा ये सवाल पैदा हुआ कि हक महर क्या तय किया जाए। शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं अपनी एक बेटी को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, इस पर कि आप 8 साल तक मेरा काम काज करें। हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से एहसान होगा। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्कत में डालूं। इंशाअल्लाह आप मुझे एक भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर राजी हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक चरवाहे का काम किया। वो बकरियों को चराते, कुएं से पानी का इंतजाम करते और घरों कारोबार का सारा काम संभालते। इस मुद्दत में उन्हें औलाद भी हुई। इस बात पर गौर करिए
کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے اور اللہ سے دعا مانگی تھی تب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پھر اللہ نے انہیں مدین میں سیفٹی پرووائڈ کری، ان کی انکم کا ذریعہ بنا دیا اور ان کو ایک لائف پارٹنر اور اولاد سے نوازا. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے اور یہ دعا بہت مشہور ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو اس دعا کو ضرور پڑھا کریں. 10 سال بعد موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کافی وقت گزر چکا ہے، اب مجھے مصر واپس جانا چاہیے. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر مصر کی طرف چلے، لیکن انہیں ایجپٹ واپس جانے کا راستہ نہیں پتا تھا. کسی سے پوچھنا چاہتے تھے پر کوئی بتانے والا نہیں تھا. رات کے وقت سردی بہت زیادہ بڑھ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو دور، بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ دکھائی دی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکے. ریگستانوں میں اکثر رات کو بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فیملی کو اس وقت آگ کی ضرورت تھی تاکہ وہ آگ کو تاپ سکے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں آگ کا ایک انگارہ آپ کے پاس لے آؤں یا ہمیں کوئی راستہ ہی دکھائی دے جائے. پھر موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس آگ کے پاس جاتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ ان سے پہلی بار کلام کرنے والے ہیں اور انہیں نبوت سے نوازنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک زیتون کے پیڑ کے اندر سے نور نکل رہا ہے. جب وہ پیڑ کے اور قریب گئے تو وہ نور اور زیادہ نظر آنے لگا. جب وہ پیڑ کے اور قریب آئے تب اس پیڑ سے ایک آواز سنائی دی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں. اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم ایک پاک میدان طوا میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے. اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنو. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جس کی اس نے کوشش کی ہو. بس اب اس کے یقین سے تمہیں کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کری. اس سے پہلے کسی نبی سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا تھا. فرشتوں، وحی یا سپنوں کے تھرو اللہ اپنا میسج نبیوں تک پہنچاتے تھے، پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کری. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو جانتے تھے لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے یہ پوچھا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پیڑ سے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی مجھے اس سے بہت سے فائدے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو صرف ایک ورڈ میں بتا سکتے تھے کہ یہ ان کی لاٹھی ہے، پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو ایک لمبا آنسر دیا، کیونکہ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ سے دیر تک بات کی جائے. اللہ نے فرمایا، اسے زمین پہ ڈال دو. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. اللہ نے انہیں آواز دی، اے موسیٰ، آگے آؤ، ڈرو مت، یقیناً تم ہر طرح امن والے ہو. بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو، ہم اسے پہلی سی صورت میں لا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اور سانپ کو دم سے پکڑ لیا تو وہ پھر سے لاٹھی بن گئی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. جب انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے بغل سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. ان کے ہاتھ سے ایک سفید نور نکل رہا تھا. پھر اللہ نے انہیں بتایا، جب تم دوسری بار اپنا ہاتھ گریبان میں لے جاؤ گے تو یہ روشنی چلی جائے گی. پھر اللہ نے فرمایا، بس یہ دونوں معجزے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب تم فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह खोल दे। हम में से अक्सर लोग भी जब खौफ की हालत में होते हैं तो स्टटर करने लग जाते हैं। मुझे मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ इसलिए मांगी ताकि अल्लाह उनकी जुबान की गिरह खोल दे और लोग उनकी बात को समझ पाएं, क्योंकि फिरौन के सामने तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे भाई हारून को भी इस काम में मेरा शरीक कर दीजिए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजने की दुआ मांगी ताकि फिरौन के खिलाफ इस बड़े काम में उन्हें अपने भाई से सहारा और मजबूती मिल सके। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करी और फरमाया, हम तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे। फिरौन के लोग तुम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। हमारी निशानियों के साथ तुम दोनों और तुम्हारे साथ देने वाले सारे लोग गालिब रहेंगे। तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला से इस मुलाकात के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को एक मिशन मिल चुका था और उन्हें नबूवत से नवाजा जा चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट की तरफ वापस गए और शहर पहुंचने के बाद अपनी माँ और अपने भाई बहन से मिले। फिर हारून अलैहिस्सलाम को पूरा वाकया बयान किया। फिर दोनों भाई फिरौन के महल की तरफ गए, लेकिन महल के गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। सिर्फ कौम के सरदारों को ही फिरौन से मिलने की इजाजत होती थी। 10 साल बाद इजिप्ट के गार्ड्स मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी रसूल हूँ, मैं तो कासिद हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ। कासिद तो दूसरे बादशाहों के होते थे, उन्हें तो अंदर जाने दिया जा सकता था, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने दिया। लेकिन जैसे ही फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम पेश हुए, फिरौन ने उन्हें पहचान लिया। बोला, तू मूसा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। फिरौन ने पूछा, किस लिए आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बे कायनात ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है कि तुम बनी इसराइल को आजाद करके मेरे साथ जाने दो और उनकी सजाएं खत्म कर दो। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा करना शुरू किया। क्या हमने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने यहाँ नहीं पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत साल हम में गुजारे हैं, फिर तू वो काम कर गया जो कर गया और तो नाशुक्रों में से हैं। फिरौन ने अपने एहसानों के तले मूसा अलैहिस्सलाम को दबाने की कोशिश करी और वो कत्ल भी याद दिलाया जो मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से हो गया था। पर इस ब्लैकमेलिंग से मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात से नहीं हटे और जवाब दिया, मैंने ये काम उस वक्त किया था जब मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था, फिर तुमसे खौफ खा के भाग गया। फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया और इल्म दिया और मुझे अपने पैगंबरों में से कर दिया। मुझ पर क्या तेरा यही एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना के रखा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे कॉन्फिडेंस से ये बातें कही। फिरौन ने पूछा, वो राब कौन है जिसकी तरफ तू हमें बुलाना चाहता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फिरौन अपने आप को खुदा मानता था और उसकी हुकूमत में किसी और की इबादत करना अलाउड नहीं था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सरेआम दरबार में डिक्लेयर कर दिया कि इस कायनात का रब कोई और है, तब फिरौन ने हंसी उड़ाते हुए अपने दरबारियों से बोला, क्या तुमने सुना? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादाओं का परवरदिगार है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल तो दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात कंटिन्यू करते रहे, वो ही मशरिक और मगरिब का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अब ऐसी चीजों का जिक्र शुरू किया जो फिरौन के बस में नहीं थी, क्योंकि फिरौन कहता था कि मैं रब हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि जमीन और आसमान और मशरिक और मगरिब का रब अल्लाह है, और लोग जानते थे कि ये चीजें फिरौन के बस में नहीं है। जब फिरौन को लगा कि ये बात अब उसके कंट्रोल से निकलती जा रही है, तब उसने गुस्से में मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी दी, सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को अपना माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूंगा। जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हारे सामने कोई खुला मौजज़ा पेश करूं तो? फिरौन ने कहा, अगर तू सच होने से है
तो उसे पेश कर। अब वक्त आ चुका था कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके सामने मौजज़ा जाहिर फरमाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अपनी लाठी जमीन पर डाल दी, जो उसी वक्त एक सांप बन गया और फिरौन के दरबार में तेजी से घूमने लगा। वहाँ खड़े लोग डर गए और अफरा तफरी मच गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपने गिरेबान में डाला और जब बाहर निकाला तो वो अचानक नूर से चमकने लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये 2 मौजज़ात पेश किए। उन्हें देख के फिरौन और उसके दरबारी हैरत ज़दा रह गए। दरबारियों ने जब देखा कि कोई फिरौन को ओपनली चैलेंज कर रहा है तो उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि ये क्या हो गया। लेकिन फिरौन ने फौरन पैतरा बदला। वो डर गया था कि कहीं दरबारी ईमान न ले आए, इसलिए फौरन बोल उठा, ये तो जादू है, यहाँ बड़े बड़े जादूगर रहते हैं। अगर तुझे ऐसा लगता है कि हम तेरे इस जादू से डर जाएंगे तो ऐसा नहीं है। हम तेरे इस जादू का मुकाबला करेंगे। एक दिन तय कर लो जिस दिन सबके सामने ये मुकाबला हो सके। मूसा अलैहिस्सलाम तो इसी मौके की तलाश में थे ताकि सबके सामने दावत दे सके। फिर एक दिन डिसाइड हुआ जहां सब मुकाबले के लिए इकट्ठा होंगे। फिरौन ने 40 जादूगर बुलाए जो सब बड़े बड़े जादूगर थे और बचपन से ही जादू सीख रहे थे। शहर भर में इस मुकाबले का ऐलान किया गया और पूरा शहर इस कंपटीशन को देखने के लिए जमा हो गया। 40 के 40 जादूगर एक तरफ सफ बनाकर खड़े हो गए और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे और उनके पीछे हारून अलैहिस्सलाम खड़े थे। मुकाबला शुरू हुआ और पूछा गया कि पहले बाजी कौन डालेगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, पहले जादूगरों को बाजी चलने दो। उन जादूगरों के पास लाठियां और लकड़ियां थी। उन्होंने वो सब जमीन पर डाल दी। देखते ही देखते वो खूब सारे सांप बन गई और तेजी से इधर उधर दौड़ने लगी। असल में वो लकड़ियां सिर्फ हरकत कर रही थी, लेकिन जादूगरों ने सबकी आंखों पर जादू का पर्दा डाल दिया था, जिससे सबको लगा कि ये सांप बन चुकी है। सारे लोगों के दरमियान अफरा तफरी मच गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ खौफ महसूस किया कि ये कैसा जादू है। उसी वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, मूसा, खौफ न करो, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। तुम्हारे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को मैदान में डाला और अल्लाह ने उसे एक बहुत बड़ा और भयानक सांप बना दिया और वो जादूगरों के सारे सांपों को खाकर निगल गया। सारे जादूगर हक्का बक्का रह गए। वो समझ गए थे कि ये जादू नहीं बल्कि असल सांप है। जादूगरों ने तो सबकी आंखों पे पर्दा डाला था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा असली था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को एक असली सांप बना दिया था। ये कोई आंखों का पर्दा नहीं था। सब के सब जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम मूसा के रब पर ईमान ले आए। उन्हें यकीन हो गया था कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मौजज़ा है। फिरौन ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। वो जादूगरों से बोला, मेरी इजाजत से पहले ही तुम मूसा के खुदा पर ईमान ले आए। कहीं ये तुम्हारा उस्ताद तो नहीं जिसने तुम्हें जादू सिखाया है? और ये सारी कंपटीशन तुम्हारा पहले से ही प्लान था ताकि तुम लोग इस शहर से पानी इसराइल को बाहर निकाल दो। ये तुम सबकी साजिश है। फिर फिरौन ने उन सारे जादूगरों को धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ और पैर छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाकर खजूर के बेरों में लटका दूंगा। मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तुझे जो करना है कर डाल। इस दुनियावी जिंदगी के नुकसान के अलावा तू हमें कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम उस रब के मुकाबले तुझे तरजीह नहीं देंगे जिस रब ने हमें पैदा किया है। फिरौन ने उन जादूगरों को फौरन सजा सुनाई और अरेस्ट करवा दिया। जादूगर ये कहते हुए गए, हम अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारे पिछले गुनाह माफ कर देंगे और अल्लाह ही सदा बाकी रहने वाला है। इस वाक़े के बाद आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूरी तरह अल्लाह पर ईमान ले आई। उनके अलावा सिर्फ 1-2 लोग ही ईमान लाए, बाकी पूरी कौम गुमराह ही रही। फिरौन ने अपने खास लोगों से मशवरा किया
کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا بانی اسرائیل پر عذاب بڑھا دیا جائے اور موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے پروٹیکشن کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز قیامت پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا جو وہ لوگ ان کے اگینسٹ پلان کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل پر عذاب اور ظلم کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کرنے کی صلاح دی، پر جب فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی تب اللہ نے مصر والوں پر قحط مسلط کر دیا۔ آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگ بھوکے رہنے لگے۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بولا، اے موسیٰ، اگر تو اپنے رب سے کہہ کر یہ قحط بند کروا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر تشدد کرنا بند کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام مان گئے اور اللہ سے بارش کی دعا کی، اور اللہ نے مصر پر پھر سے بارش برسانا شروع کر دی اور قحط ختم ہو گیا۔ لیکن فرعون پھر بھی باز نہیں آیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر پھر سے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا۔ پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی۔ جن پیڑوں پر بھر بھر کے پھل اگتے تھے اب ان پر صرف 1-2 پھل ہی اگنے لگے۔ کھجوروں کے پیڑ پر بس 1-8 کھجور اگتی، انگوروں کی بیلوں پر بھی بس 1-8 انگور نظر آتا۔ ایک بار پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے پروردگار سے دعا کر کے وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا دے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری تو پھر سے مصر میں خیر و برکت کا دور شروع ہو گیا۔ پیڑوں پر پھر سے پھل لگنا شروع ہو گئے، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہیں چھوڑا، الٹا انہیں منحوس قرار دیا۔ مصر پر ساری مصیبتیں بنی اسرائیل کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر طوفان بھیجا۔ دریائے نیل میں ایسا طوفان آیا کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا۔ سیلاب صرف مصریوں کے گھروں کو برباد کرتا تھا اور بنی اسرائیل کے گھر آ کر رک جاتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکت کو دیکھ رہے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے، آئے موسیٰ، اس مصیبت کو بھی رکوا دو، اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب رک جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری اور یہ عذاب بھی رک گیا، لیکن مصر والوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا بند نہیں کیا۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب شروع ہوا۔ مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈیوں کی فوج آتی تھی اور ان کی پوری فصل کو چٹ کر جاتی تھی، لیکن یہ ٹڈیاں بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی گئی اور پھر سے انہیں اس عذاب سے نجات ملی۔ باز نہ آنے پر ان پر جوؤں کا عذاب شروع ہوا۔ جوئیں مصریوں کے سر سے نکلتی تھیں، ان کے پورے جسم میں جوئیں بھر جاتی تھیں۔ جیسے ہی کوئی مصری کے آس پاس آتا تو دوسروں پر بھی جوئیں گرنے لگتی تھیں۔ کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بیڈ پر لیٹتا تو اس کے بیڈ پر جوئیں ہی جوئیں گر جاتی تھیں۔ یہ آزمائش مصریوں پر بہت بھاری پڑی، لیکن بنی اسرائیل اس عذاب سے محفوظ تھے۔ اس کے بعد مینڈک کا عذاب شروع ہوا۔ مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں مینڈک نہیں آتے تھے۔ جب بھی کوئی مصری اپنا برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا، کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا۔ فرعون کے محل میں بھی مینڈک ہی مینڈک ہو گئے تھے۔ یہ ایک بہت گھنونا عذاب تھا جس سے مصریوں کو تبھی نجات ملی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری۔ فرعون ظلم کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت خوفناک عذاب شروع ہوا۔ دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ مصریوں کا سارا پانی خون بن گیا۔ ایک ہی کنویں سے اگر مصری پانی نکالتے تو ان کا پانی خون بن جاتا، لیکن اگر بنی اسرائیل پانی نکالتے تو وہ پانی ہی رہتا تھا۔ مصری پانی لینے کے لیے بنی اسرائیل کی مدد لینے لگے، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل کنویں سے پانی نکال کے مصریوں کو دیتے، ان کے ہاتھ میں آتے ہی پانی خون بن جاتا تھا، لیکن اگر اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو وہ پانی بن جاتا تھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ مصریوں نے بنی اسرائیل سے کہا، تم اپنے منہ سے ہمارے منہ میں کلی کر دو،
ताकि हमारी प्यास तो बुझ जाए। लेकिन ऐसा करने पर भी मिस्रियों के मुंह में जाते ही वो पानी खून बन जाता था। इस अजाब के सामने फिरौन भी बेबस हो गया था। मामला जब यहाँ तक पहुँचा तो वो सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, आए मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर दीजिए, और अगर आप इस अजाब को हम पर से हटवा देंगे तो हम जरूर आप पर ईमान ले आएंगे और हम बनी इस्राएल को आजाद कर देंगे। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी और अल्लाह ने वो अजाब हटा दिया तो वो सब अपनी बात से मुकर गए। इन लोगों ने ये सारे मौजज़ात अपनी आँखों से देखे, लेकिन वो फिर भी ईमान ना लाए और अपने गुरूर और तकब्बुर में पड़े रहे और लगातार हक को झुटलाते रहे। जब इतने अजाब और मौजज़ात देखने के बाद भी वो लोग ईमान नहीं लाए तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ, रातों रात मेरे बंदों को ले जाओ। चुनाचे रात को सब बनी इसराइल निकले। वो अपने दरवाजों पर एक खास निशान छोड़कर चलने लगे। रात की तारीकी में निकलने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि फिरौन उनके बारे में कोई फैसला ना कर सके। उन्होंने सुबह होने का इंतजार नहीं किया। बनी इसराइल की तादाद तकरीबन 6 लाख थी। वो सारे लोग अपना सारा सामान, माल और जानवर लेकर फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। फिरौन को जब सुबह ये सब कुछ पता लगा तो वो गुस्से से पागल हो गया। सोच में पड़ गया कि अब हमारी गुलामी कौन करेगा। फिरौन अपनी फौज के साथ बनी इसराइल को पकड़ने के लिए चल दिया। लाखों सिपाहियों का लश्कर अपने घोड़ों और गाड़ियों पर सवार होकर तेजी से बनी इसराइल का पीछा करने लगा। बनी इसराइल समुंदर के किनारे पहुंचकर रुक गए। उन्होंने दूर से एक रेत का तूफान देखा और समझ गए कि फिरौन की फौज तेजी से उनकी तरफ आ रही है। आगे समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल घबरा गए कि अब क्या होगा और मूसा अलैहिस्सलाम से बोलने लगे, अरे मूसा, तुमने हमें यहाँ लाकर मरवा दिया। इससे अच्छा तो हम फिरौन के गुलाम ही देखते। अब हमारा क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता देगा। मूसा अलैहिस्सलाम को भी सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें अपने रब पर यकीन था। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। ये है ईमान बिल गैब। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब अल्लाह के मोहताज है। ये मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन था और अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी समुंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी। बस उसी वक्त समुंदर फट गया और पानी दोनों तरफ पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और समुंदर के बीच में से रास्ता बन गया। बनी इसराइल का मुंह खुला का खुला रह गया। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसका तसव्वुर कोई इंसान कर ही नहीं सकता। फिर बनी इसराइल के सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल दिए। हर इंसान अपने सामान, बच्चे और जानवरों के साथ सलामती से समुंदर के बीचों बीच से हैरत ज़दा होकर गुजर रहा था। किसी को भी अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक एक इंसान सलामती से गुजर गया। जब फिरौन वहाँ पहुँचा, उसको अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। इस मौजज़े ने फिरौन और उसके लश्कर को हिला कर रख दिया। जाहिर सी बात है कि समुंदर का इस तरह फट जाना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं। ये मौजज़ा सिर्फ रब की तरफ से ही हो सकता है। फिर फिरौन ने सोचा कि जब मूसा और उसके लोग सही सलामत गुजर गए हैं तो हम भी यहाँ से गुजर सकते हैं। उसने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि समुंदर के इस रास्ते पर उतरो और वो खुद भी अपने घोड़े के साथ समुंदर में उतर गया। इधर मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी आदमी समुंदर से निकल रहा था, उधर फिरौन का आखिरी आदमी समुंदर में दाखिल हो रहा था। फिर अल्लाह ने समुंदर को बंद हो जाने का हुक्म दिया और पानी के 2 पहाड़ एक सैलाब की तरह फिर से गिर गए और रास्ता डूब गया। फिरौन और उसके सारे लोग समुंदर में डूब गए। जब फिरौन डूब रहा था और उसने मौत का फरिश्ता देख लिया तो खौफजदा होकर बोला, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ जिस पर बने इस्राएल ईमान लाए हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन एक इंसान को सिर्फ तब तक मोहलत मिलती है जब तक वो जिंदा है।
मौत का फरिश्ता दिखने के बाद तौबा कबूल नहीं होती। जब फिरौन ने कहा कि मैं अब ईमान लाता हूँ, तब अल्लाह ने जवाब फरमाया, तू अब ईमान लाता है और इससे पहले सरकशी करता रहा और मुफ्सिदों में दाखिल रहा, सो आज हम तेरी लाश को नजात देंगे ताकि तू उन लोगों के लिए बाइस इबरत हो जो तेरे बाद आएंगे। ह्यूमन बॉडी समुंदर या जमीन में आसानी से गल जाती है, लेकिन अल्लाह ने फिरौन की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा। हजारों साल बाद फिरौन की बॉडी पाई गई और आज तक उसकी बॉडी नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन कायरो इजिप्ट में मौजूद है। अल्लाह ने खुलेआम ऐलान करा, उसे कुरान में भी फरमाया, और आज तक फिरौन की बॉडी निशानी के तौर पर मौजूद है। इजिप्ट के म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखी है। वो फिरौन जो अपने आप को रब कहता था, आज तक जलील हो रहा है। उसे ना जमीन ने डीकम्पोज किया, ना ही समुंदर ने गलाया। फिरौन से बड़ा जालिम बादशाह आज तक इस दुनिया में नहीं आया। जब अल्लाह ने उसका ये हाल कर दिया, तो सोचिए कि बाकी जालिम बादशाहों का क्या हाल होगा। एक ऑथेंटिक हदीस में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप देख सकते जिस वक्त फिरौन समुंदर में डूबते हुए ईमान का इजहार कर रहा था, उस वक्त मैं उसके मुंह में मिट्टी भर रहा था कि कहीं वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे और अल्लाह उस पर रहम ना फरमा दे। जरा सोचिए कि अल्लाह कितना रहम करने वाला रब है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये डर था कि इतने जुल्म करने वाले फिरौन को भी अल्लाह माफ कर देगा। दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने फिरौन के सारे लश्कर को डूबते हुए देखा और समुंदर को फिर से बंद होते हुए देखा और सुकून की सांस ली। फिर वो फिलिस्तीन की तरफ चले। रास्ते में उन्होंने एक बस्ती को देखा जिसके लोग बुतों की पूजा में मशगूल थे। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आए मूसा, हमारे लिए भी ऐसा माबूद मुकर्रर कर दीजिए जैसे इनका ये माबूद है। सोचिए, इतना बड़ा मौजज़ा देखने के फौरन बाद भी उन्होंने ऐसी बात करी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाकई तुम लोगों में बड़ी जहालत है। ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं वो तबाह किया जाएगा और उनका ये काम महज बेबुनियाद है। क्या अल्लाह ताला की सिवा किसी और को तुम्हारे लिए तलाश करूं, हालांकि उसने तुम्हें तमाम जहां वालों पर फौकियत दी है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिर से तूर के पहाड़ पर बुलाया और वहाँ 30 रातें गुजारने का हुक्म दिया ताकि अल्लाह उन पर तौरात नाजिल कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर तूर के पहाड़ पर चले गए और हारून अलैहिस्सलाम को उनका हाकिम बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने 30 रातों की बजाय 40 रातें तूर के पहाड़ पर उसी जैतून के पेड़ के पास गुजारी जहाँ पर अल्लाह उनसे डायरेक्ट कलाम करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रिक्वेस्ट की, ए अल्लाह, मुझे आपको देखना है, मुझे अपना दीदार करवा दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते क्योंकि दुनियावी आंख में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि वो मुझे देख सके। अल्लाह ताला का नूर इतना ज्यादा है कि इंसान की आँखें और जात उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ने फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, लेकिन तुम उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। फिर जब अल्लाह ने उस पहाड़ पर अपनी हल्की सी झलक दिखाई तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, ए अल्लाह, बेशक आपकी जात पाक है, मैं आपके हुजूर तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने इस सवाल पर शर्मिंदगी जाहिर करके माफी मांगी। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैंने तुम्हें पैगंबर बनाया है और अपनी हम कलामी से तुम्हें बाकी लोगों से खास बनाया है, तो जो कुछ मैंने तुम्हें अता किया है उसका शुक्र अदा करो। इसके बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर की तख्तियों में तौरात लिखकर अता करी। इसमें अल्लाह की तरफ से 10 हुक्म थे
जिनको मानकर बनी इसराइल को जिंदगी गुजारनी थी। इनको द 10 कमांडमेंट्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इन 40 दिनों में गुमराह हो गई। उन्होंने सामरी जादूगर की बातों में आकर अपने सारे सोने चांदी को गलाकर एक गाय के जैसा मुजस्मा बनाया। वो अंदर से खोखला था, लेकिन जब उसमें से हवा गुजरती तो उसमें से एक आवाज पैदा हो जाती थी। तो ऐसा मालूम होता था कि इस मुजस्मे से आवाज आ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इस गाय के मुजस्मे की पूजा करने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो लोग ना माने। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरकर आए तो अपनी कौम को बुत की पूजा करते हुए देखकर गुस्से से गजबनाक हो गए। उन्होंने पत्थर की तख्तियां फेंक दी और गुस्से से हारून अलैहिस्सलाम के बाल पकड़ लिए और कहने लगे, ए हारून, इन्हें गुमराह होने से क्यों नहीं रोका? मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ 10 दिन एक्स्ट्रा लग गए थे। 30 की बजाय वो 40 रातों के बाद वापस आए थे। इतने से ही टाइम में उनकी कौम ने ये हरकत करी। हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई बयान करी। मैंने इन्हें समझाया था, लेकिन ये न माने। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को गुस्से से कहा, क्या तुम सिर्फ 10 दिन की ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सके? क्या तुम अल्लाह के गजब का शिकार होना चाहते हो? अल्लाह ने फरमाया, क्या ये गुमराह लोग ये भी नहीं देखते कि जिसको इन्होंने माबूद बना रखा है वो उनकी बातों का जवाब भी नहीं दे सकता और ना उनके किसी बुरे भले का इख्तियार रख सकता है। सोचिए, अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बाद भी उन्होंने कुफ्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में उस गाय के बछड़े को जला दिया और उसकी राख सबके सामने समुंदर में फेंक दी और फरमाया, तुम सबका रब सिर्फ अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तख्तियां दिखाईं और अल्लाह के 10 अहकाम बताए, लेकिन उन लोगों ने तौरेत के अहकाम मानने से मना कर दिया और बोले, जब तक हम अल्लाह को नहीं देख लें तब तक हम ईमान नहीं लाएंगे। फिर अल्लाह ने एक जलजला भेजा, तूर का पहाड़ हिलने लगा तो सब के सब सजदे में गिर गए। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल कुद्स की तरफ गए, जो कि फिलिस्तीन के पास है। यहाँ के लोग बहुत ताकतवर थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इन लोगों के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि इस जगह को फतह किया जा सके। ये जगह अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दी है और तुम बड़ी आसानी से इन लोगों पर गालिब आ जाओगे। लेकिन कोई आदमी जंग के लिए तैयार ना हुआ और सब बोले, तुम और तुम्हारा रब ही जाकर लार लो, हम यहाँ बैठे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से बहुत डिसअपॉइंट हुए और दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मुझे तो सिवाय अपने और अपने भाई के किसी और पर इख्तियार नहीं। तू हम में और इन नाफरमानों के बीच जुदाई डाल दे। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को सजा दी और वो जमीन उन पर 40 साल तक हराम कर दी गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, इन्हें यहाँ से वापस ले जाओ और करीब की किसी बस्ती में दाखिल कर दो। बनी इसराइल वहाँ से चल पड़े, लेकिन वो बस्ती ना आई। वो सफर करते रहे, लेकिन फिर भी खुद को वहीं पाते। 40 साल वो लोग इसी तरह रेगिस्तान में भटकते रहे, लेकिन वो इस मैदान से निकल नहीं पाए। ये इसलिए क्योंकि अल्लाह ने उन्हें सेटल करने के लिए एक जगह मुकर्रर कर दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं किए। अल्लाह ऐसा रहमान है कि अजाब के इन 40 सालों में भी उन पर रहम करता रहा। उनके पास जन्नत का खाना मनो सलवा उतरता था। सलवा एक किस्म के परिंदे होते जिनके झुंड के झुंड उनके पास आते जाते थे, जिनको वो लोग खाते थे और उनको प्रोटीन मिलता था। और मन एक किस्म की मीठी चीज थी जो आटे जैसी बारीक थी और रात के वक्त पत्तों पर ओस जैसी जम जाती थी। ये उसे पीने या खाने की चीज में मिक्स करके उसे यूज करते थे, जिससे उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी मिलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर पर लाठी मारने से 12 पानी के चश्मे निकले। 12 कबीलों के लिए 12 पानी के चश्मे जारी हुए। वो लोग जहाँ भी जाते इस पत्थर को अपने साथ ले जाते और जिस भी जगह इस पत्थर को रखते वहाँ से 12 पानी के चश्मे फौरन जारी हो जाते थे। उस रेगिस्तान में बहुत धूप होती थी
तो अल्लाह ने उनके साए का इंतजाम भी कर दिया था। उनके ऊपर हर वक्त बादल उनके साथ साथ चलते थे ताकि उन तक धूप ना पहुंच पाए। इतनी सारी नेमतों के बावजूद भी बनी इसराइल खुश ना हुए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करी, हम एक जैसा खाना रोज रोज कैसे खाएं? हमें प्याज खानी है, लहसुन खाना है, आलू खाना है, खेरा खाना है और दाल भी खानी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ये जन्नत का खाना तुम्हें बगैर किसी मेहनत और मुशक्कत के मिलता है। तुम लोग क्यों अपने लिए मुश्किल मांगते हो? जन्नत के खाने की बजाय दुनिया का खाना मांगते हो। पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बहुत नाशुक्री थी। फिर उनसे कहा गया, ठीक है, किसी शहर में चले जाओ और ये खाने उगाकर खाओ। एक दिन लोगों ने देखा कि किसी बुजुर्ग का कत्ल हो चुका है। कातिल का पता नहीं लग पा रहा था। सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई। तब अल्लाह ने वही नाजिल की, एक गाय ज़िबा करो। वो लोग कहने लगे, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, इसमें अल्लाह की कोई न कोई हिकमत जरूर होगी। आप अल्लाह से पूछिए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो गाय ना तो बूढ़ी हो न बच्ची हो, बल्कि नौजवान गाय हो। अब जाके उसे ज़िबा करो। फिर उन लोगों ने पूछा, उसका रंग क्या होना चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, वो जर्द रंग की होनी चाहिए। उन लोगों ने फिर पूछा, अल्लाह से उसकी और तफसीलात पूछिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो गाय काम करने वाली, हल जोतने वाली और खेतों में पानी पिलाने वाली ना हो, एकदम तंदुरुस्त और बेदाग हो। तब जाकर उन लोगों ने उस गाय को ढूंढना शुरू किया। इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स की गाय मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हर जगह ढूंढने के बाद एक यतीम लड़के के पास ऐसी गाय मिली। उस लड़के का बाप बहुत नेक और गरीब था। वो अपने बेटे के लिए इस गाय के अलावा और कुछ भी नहीं छोड़कर गया था। अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह किस तरह रिस्क पहुंचाता है। बनी इसराइल इस गाय के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गए। उस लड़के ने इस गाय की खाल जितना सोना मांगा और बनी इसराइल को ये कीमत अदा करनी पड़ी क्योंकि ये गाय बहुत रेयर थी। अल्लाह ने बनी इसराइल को सिंपल हुक्म दिया था, एक गाय ज़िबा करो। अगर वो बस उस वक्त इस हुक्म पर अमल कर लेते तो मुश्किल नहीं होती, लेकिन उन्होंने बार बार अननेसेसरी डिटेल्स पूछना शुरू कर दी। हर सवाल के साथ अल्लाह कंडीशन स्ट्रिक्ट करता गया। जो काम आसान था वो उनके लिए बहुत मुश्किल बन गया। जब बनी इसराइल ने इस गाय को ज़िबा कर लिया, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, मरे हुए इंसान पर इस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मारो। जब उस मरे हुए आदमी पर उस गाय का टुकड़ा मारा गया तो वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। उसने खुद बताया कि उसका कातिल कौन है और ये बताने के बाद वो फिर से मर गया। ये अल्लाह की तरफ से एक और मौजज़ा था कि अल्लाह जिसे चाहे उसे जिंदा कर सकता है। ये अल्लाह की तरफ से एक और मौजज़ा था। अल्लाह जिसे चाहे मौत दे और जिसे चाहे जिंदा करे। लेकिन ये मौजज़ा देखने के बाद भी बनी इसराइल का दिल नरम नहीं हुआ। उनके दिल में कुफ्र बहुत पुख्ता हो चुका था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, इस दुनिया में सबसे इल्म वाला इंसान कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं हूँ। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जमीन पर आपसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो शख्स कौन है और कहाँ रहता है? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को जगह बताई और फरमाया, समुंदर में सफर करो और अपनी टोकरी में एक मछली रख लो। जहाँ वो मछली खो जाए तुम्हें वो शख्स वहीं मिलेगा। इस वाक़े का जिक्र सूरह कहफ में आता है। मूसा अलैहिस्सलाम यूशा अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर अपनी कश्ती समुंदर में लेकर इस सफर पर जारी हो गए। उन्होंने अपनी बास्केट में एक मछली रख ली। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आई तो वो सो गए। उसी वक्त वो मछली फड़की
اور سمندر میں چھلانگ لگا کر راستہ بناتی ہوئی نکل گئی۔ یوشع علیہ السلام نے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ اگلے دن یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی اور وہ دونوں واپس اس جگہ آئے جہاں پر اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ اس جگہ کے پاس ہی موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو سلام کیا اور فرمایا، آپ مجھے غیب کا وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں، اس پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلنے کا اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں تو چلیے، لیکن دھیان رہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود اس بات کی حکمت آپ کو نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام مان گئے اور ان کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ یوشع علیہ السلام کو واپس بھیج دیا گیا۔ راستے میں وہ دونوں کچھ غریب لوگوں کی کشتی میں سوار ہوئے۔ وہ لوگ محنت کر کے لوگوں کو دریا پار کرانے کا کام کرتے تھے اور اسی کام سے ان کا گھر چلتا تھا، لیکن خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی میں چھید کر دیا۔ کشتی ڈوبنے لگی۔ وہ لوگ پانی کشتی سے باہر نکال کر پھینکنے لگے اور جیسے تیسے کشتی بچ پائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور انہوں نے خضر علیہ السلام سے پوچھا، ان نیک لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ کشتی ان کا اکلوتا روزگار تھی، اس میں چھید کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور وہ دونوں آگے بڑھے۔ دونوں ایک جوان لڑکے سے ملے۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام شاکڈ رہ گئے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام سے بولا، یہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ خضر علیہ السلام پھر بولے، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اب اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ ایک بار پھر سفر شروع ہوا۔ وہ ایک گاؤں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا۔ وہ گاؤں والے بہت روڈ تھے اور انہوں نے مہمان نوازی سے صاف منع کر دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر کے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کو کرنے کے کچھ پیسے لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس اب آپ کا اور میرا سفر ختم ہوا۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ میں نے ان غریب لوگوں کی کشتی میں چھید اس لیے کرا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی میں چھید اس لیے کر دیا تاکہ کشتی میں نقص کی وجہ سے وہ اس کشتی کو چھوڑ دے اور ضبط نہ کرے۔ کشتی والے تو اپنی کشتی کو آسانی سے ٹھیک کر لیتے، لیکن اگر وہ کشتی ان سے چھن جاتی تو ان کے روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں بچتا۔ اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ بہت نیک اور ایماندار لوگ تھے۔ یہ لڑکا جوان ہو کے انہیں بہت پریشان کرتا اور سرکش ہو جاتا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ انہیں اس لڑکے کی بجائے ایک نیک اولاد عطا کرے جو جوان ہو کر اپنے ماں باپ سے محبت کرے اور ان کا خیال رکھے۔ دیوار کی مرمت میں نے اس لیے کی کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا باپ بہت نیک تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اللہ کی یہ مرضی تھی کہ یہ دونوں بچے اپنی جوانی تک پہنچ جائیں اور پھر یہ خزانہ نکلے۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو یہ ظالم گاؤں والے ان بچوں سے یہ خزانہ چھین لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کا حکم تھا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ علم غیب ہوتا ہے، اللہ کے کچھ ایسے فیصلے جو سمجھ نہیں آتے پر ان کے پیچھے حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھایا پر خضر علیہ السلام کو اس علم سے نوازا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا
کہ دنیا میں ان سے بھی زیادہ علم والا کوئی اور موجود ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے علم سے نوازتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس گئے۔ ان کی قوم 40 سال تک اسی ریگستان میں بھٹکتی رہی۔ آخرکار اللہ نے انہیں سزا دی تھی۔ اس دوران ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں اس میدان میں دفن کیے گئے۔ ہارون علیہ السلام کی وفات کے صرف 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی۔ جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مار دیا۔ ملک الموت نے اللہ کے پاس واپس جا کر کہا، اے رب، تو نے ہمیں ایسے شخص کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایک بیل کے اوپر ہاتھ پھیرے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال انہیں اور زندگی مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے پروردگار، اس کے بعد کیا؟ اللہ نے فرمایا، پھر بھی مرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، تو پھر ابھی صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری کہ ان کی موت بیت المقدس کے قریب ہو، چاہے وہ ایک پتھر پھینکنے جتنے ڈسٹنس پر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کری اور موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس کے باہر لیکن بہت قریب دفنایا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا، وہ راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے ہے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی قبر پبلکلی نون نہیں ہے، لیکن لوگوں نے تھوڑا اندازہ لگا کر ان کی قبر کی لوکیشن ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، پر اس میں بھی اختلاف ہے۔ اللہ نے حکمت کے تحت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ہڈن رکھا تاکہ یہودی اور مسلمان قبر پرستی اور جھگڑے میں نہ پڑ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت سارے لائف لیسنز ملتے ہیں۔ سب سے پہلا لیسن یہ کہ جب ظلم اپنی حد پر ہوتا ہے، اللہ اپنی مدد بالکل قریب لے آتا ہے۔ فرعون نے سوچا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مار کر اپنی بادشاہت بچا لے گا، لیکن اللہ نے اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ اللہ کا پلان ہمیشہ ظلم سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے سب سے پاورفل مومنٹ، سمندر کا پھٹنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج، تب بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور وہی ہوا، سمندر پھٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر سارے راستے بھی بند ہو جائیں، اللہ ہمارے لیے وہاں سے راستہ نکال سکتا ہے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ ایک لیسن اور ملتا ہے کہ اللہ امپرفیکٹ لوگوں سے کام لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان کی کمزوری کا ذکر خود کرتے ہیں، پھر بھی اللہ انہیں دنیا کے سب سے پاورفل بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ مطلب ہماری کمزوریاں اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ ہماری نیت دیکھتا ہے اور ہمیں کامیاب کرنا اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ کئی بار ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جو بھی ہو، ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور سوچی ہوگی۔ ہم لوگ اکثر خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم کسی نبی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تاکہ ہمارا ایمان بھی اسٹرانگ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ نبی کے پاس ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے دلوں میں کفر رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کتنے سارے معجزے دکھائے، یہاں تک کہ سمندر کے پھٹنے جیسا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے یہ خواہش کری کہ اللہ کے سوائے کسی بت کو پوجا جائے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان کے وسوسوں کو کبھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ دھیرے دھیرے کر کے وہ آپ کا ایمان چھین سکتا ہے۔ اور یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دین سے اور ایمان سے نوازا ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ اگر کسی کو ہدایت دے دے تو سمجھ لو کہ اسے سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔
کیونکہ بنی اسرائیل جیسی قومیں اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد بھی ہدایت نہیں پا سکی۔ اگر اللہ نے آپ کو دین کی ہدایت دی ہے، اس لیے اس دین پر اسٹرانگلی جم جائیے اور اپنی زندگی میں ایسی عبادتیں اور ایسے کام کر لیجئے کہ آپ کی آخرت سنور جائے۔ اور جب آپ کو یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔